آج کل میں عجیب سے احساس کمتری میں مبتلا تھی، اپنی یہ کیفیت کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی، اور خود یہ احساس مجھے دن بدن اور زیادہ پریشان کرنے لگا تھا۔ شاید یہ کیفیت تب سے طاری ہوئی تھی جب سے میری دیورانی ہنی بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ خوبصورت نقوش کی مالک ہنی، جس کا اصلی نام تو حبیبہ تھا، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے، لیکن پکاری اور جانی پہچانی وہ ہنی کے نام سے ہی جاتی تھی۔ بہت گورا چٹا رنگ نہ تھا اس کا، لیکن اسے اپنے رنگ کو گورا بنانا آتا تھا۔ اس مہارت سے میک اپ کرتی کہ وہ میک اپ اس کے چہرے کا حصہ لگنے لگتا، اور پھر خوبصورت ہیئر سٹائل، سٹیپ میں کٹے بالوں کی ترتیب بھی جب چاہتی بدل لیتی۔ کبھی کھلا چھوڑ دیتی، کبھی اونچی سی پونی بنا کر وہ اور بھی چھوٹی سی بچی لگنے لگتی۔ اس پر پہننا اوڑھنا بھی خوب آتا تھا اس کو، بظاہر اتنے مہنگے بھی نہ ہوتے تھے اس کے کپڑے، لیکن ایسے ڈھنگ سے وہ درزی کو سمجھاتی کہ کیا ہی کسی بوتیک سے خریدے گئے کپڑوں سے کم لگتے ہوں گے۔ اس پہ باتیں کرنے کا انداز، ہنسنے کا انداز، سب کچھ منفرد تھا اس کا۔ اس کا میاں یعنی میرا دیور رضوان تو کیا ہی دیوانہ ہوا جا رہا تھا اس کا۔ کئی بار تو میں نے اپنے میاں عثمان صاحب کو بھی کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے پایا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک تھا، چل جاتا، لیکن عثمان صاحب کے دیکھنے کے یہ انداز مجھے بہت بہت کچھ محسوس کرانے لگے۔ میں بخدا کبھی بھی حاسد واقعہ نہیں ہوئی ہوں، نہ کبھی کسی کی دولت سے حسد کیا، کیونکہ خدا کا دیا میکے میں بھی بہت کچھ تھا اور سسرال میں بھی کوئی کمی نہ تھی۔ شکل صورت بھی خدا نے بہت زیادہ اچھی نہ سہی، لیکن پھر بھی ہزاروں سے اچھی دے رکھی تھی، اور پھر تعلیم بھی BA تک تھی، جو ایک گھرداری کرنے والی لڑکی کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں آن کی آن میں مجھے خود میں بے شمار خامیاں نظر آنے لگی تھی۔ کبھی اپنی شکل بری لگنے لگتی، کبھی اپنے کپڑے ماسے کی طرح کے لگنے لگتے، اور تو اور کبھی کبھی مجھے یوں لگتا میں ہنی کی اماں نظر آتی ہوں، کیونکہ میں عام طور پر جس ہولیے میں گھر میں رہتی تھی اور ہنی جس تیار فریش لگتی تھی، اس کے مقابلے میں بہت بری لگتی تھی۔ حالانکہ عمر کا فرق یہی کوئی 4-5 سال کا ہوگا، لیکن وہ بڑے دھڑلے سے خود کو 19 سال کا کہتی تھی۔ حالانکہ خاندان برادری ایک تھی، اور کسی کی بھی عمر کسی سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ وہ میرے چھوٹے بھائی انیس کی ہم عمر تھی، اور انیس اس وقت پورے 23 برس کا تھا۔ یہ 2-4 سال اوپر نیچے کر لینے سے کیا تسکین مل جاتی ہے، آخر بڑے ہی ہونا ہے نا بندے کو، عمر کو کوئی روک تو نہیں سکتا، پھر کیا فائدہ جھوٹ بولنے کا۔ میں اندر ہی اندر سر جھوٹ کی عدالت سجا بیٹھتی، لیکن کیا فائدہ بلا وجہ کرنے کا، مجھے کیا بھلے وہ خود کو 16 سال کی کہے۔ میں نے خود کو ڈانٹا اور کچن میں گھس گئی۔ آج رضوان قیمہ کریلے پکانے کی فرمائش کر کے گیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ فرمائش اس نے ہنی سے کی تھی، اور انداز بھی خوب تھا۔ ہنی بھائی، اب بہت ہو چکا، شادی کو 4 ماہ گزر چکے ہیں، اب تھوڑی بھابھی کی ہیلپ کرو، دیکھو تو سارا دن اکیلی لگی رہتی ہے کام میں۔ رضوان کہہ کر چلا گیا، لیکن ہنی نے آ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ او بجو، میری پیاری بجو، وہ مجھے بھابھی کے بجائے بجو کہہ کر پکارتی، بقولس کے وہ گھر میں اپنی بڑی بہن کو بھی بجو ہی کہہ کر پکارتی تھی، اور میں بھی اسے اس کی بہن کی طرح ہی نظر آتی ہوں۔ بجو پلیز، مجھے نہیں آتی یہ قیمہ کریلے پکانے، وہ دلار سے بولی۔ تو میں سکھا دیتی ہوں، میں بھی جواباً خاصے لاڈ سے بولی۔ پھر بھی میں کبھی بھی اس طرح نہیں پکا سکوں گی جس طرح آپ پکاتی ہیں۔ سچ، جادو ہے آپ کے ہاتھ میں، سچ بتائیں، کیسے اتنا کچھ سیکھ لیا آپ نے؟ میں تو جب سے آئی ہوں اس گھر میں ہر روز ایک نئی ورائٹی ملتی ہے آپ کے کھانوں میں۔ او میرے خدا، یہ کس مٹی سے گوندا ہے تو نے انسان کو، تعریف کیسے پاگل کر دیتی ہے بندے کو۔ یہی حال میرا بھی تھا، جی چاہا دنیا جہان کی نعمتیں پکا پکا کر ہنی کے آگے رکھتی جاؤں، اور اسے بتاؤں کہ مجھے اور بھی بہت کچھ پکانا آتا ہے۔ اچھا جاؤ تم یہاں سے، کچن میں بہت گرمی ہے، میں بنا دوں گی۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی اور اسے بھیج کر کھانا پکانے میں جٹ گئی۔ باہو، تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ کھچڑی بنانا آج کھانے میں، رات سے ان کا پیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ کل کی بد پرہیزی بھی تو خوب کی تھی انہوں نے۔ امی جی، میری ساس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر آواز دی۔ اچھا امی جی، بنا دیتی ہوں، میں نچار خاصی بشاشت سے بولی۔ حالانکہ نومی، میرا 4 سالہ بیٹا، صبح سے گندے کپڑوں میں کھیل رہا تھا، اور یہ گندگی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن کیا کرتی، یہاں بھی کافی پھیلا ہوا سلسلہ تھا کاموں کا۔ یہاں سے فراغت ہوتی تو دوسری طرف دھیان جاتا، لیکن بھلا ہو مومنا میری نند کا، جب تک میں کچن سے فارغ ہوئی وہ نومی کو نہلا کر کپڑے تبدیل کروا چکی تھی۔ تھینک یو مومنا، شکر گزاری ضرورت سے زیادہ تھی مجھ میں، اور بعض اوقات یہ خوشامد تک کی صورت اختیار کر جاتی۔ اب بھلا میں نے ان سب کے لیے کھانا بنایا تو جواباً وہ اگر میرے بچے کی دیکھ بھال کر لیں یا پھر نہلا دیں تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرنے کے بعد خود کو ڈانٹنے لگی۔ کھانے کی میز پر حسب معمول سبھی موجود تھے، بلکہ اس گھر کا اصول تھا کہ کھانا سارے گھر والے اکٹھے اور ایک ہی وقت پر کھایا کرتے تھے۔ ہنی، شام کو تیار رہنا، آصف خان میرے آفس کولیگ ہیں، ان کے یہاں چلنا ہے۔ کھانے کے دوران رضوان ہنی سے کہہ رہا تھا۔ وہ کس سلسلے میں؟ تراشیدہ بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتی ہنی بولی، ان کے بیٹی کی سالگرہ ہے،
बतौर खास तुम्हें और मुझे बुलाया। चलें देखेंगे। वो बज़ाहिर शरारत से मुस्कुराते हुए रिजवान को देखने लगी। वाह वाह मेरे मौला तेरी शान। एक हम थे, शादी के 2 साल बाद तक मियाँ से हूँ और जी के अलावा सबकी मौजूदगी में कुछ बोला ही नहीं करते, और एक ही जोड़ी इशारों के नयों से लेकर हल्के फुल्के मानी के जुमलों तक का तबादला सबकी मौजूदगी में कर लेती है। मुझे अच्छी तरह याद था, 6 साल कबल जब मैं ब्याह कराई थी तो अम्मी जी ने मुझे समझाया था कि देखो एहतियात करना, घर में 2 कवारी नंदे और 2 देवर हैं, और मैं पागल जिसने गिरा से उस बात को यूं बांधा गोया ये गिरा खोल दी तो सारा निजाम जिंदगी दरहम भरम हो जाएगा। क्या अब नजर नहीं आता अम्मी जी को? एक आमना भी यही जा चुकी है, मोमना तो है ना, और फिर जिशान भी अभी कंवारा है। और हकीकत भी यही थी, वो दोनों बड़ी दिलचस्पी से उन दोनों की अदाओं को देखा करते थे। भाभी, आपके आने से रौनक आ गई है घर में। ज़ीशान उस रोज बड़े मूड में था, हनी के करीब सोफे पर बैठे हुए बोला। और क्या मेरी सारी फ्रेंड्स भी तारीफ करी थी, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी भाभी। मोमना भी शरीके गुफ्तगू हुई। भाई शुक्रिया तुम दोनों का। बस ये मोहब्बत होती है जो बंदे को खूबसूरत और बदसूरत बनाती है, और ये तुम दोनों की मोहब्बत है जो तुम ऐसा कह रहे हो। एहसास हुस्न से चूर हनी एक अदा से मुस्कुरा कर बोली। वाह जी वाह, यानी ये मोहब्बत है जो हनी उनका खूबसूरत नजर आ रही है। अगर बात सिर्फ मोहब्बत की ही होती तो सबसे खूबसूरत हस्ती अम्मी जी की थी, घर में, या फिर बाबा जान की जो मोहब्बतों के खजाने थे। अम्मी जी तो फिर कभी कभार डांट डपट भी कर लिया करती थी, लेकिन बाबा जान तो सरापा शफकत है, और ये हनी उस मोहब्बतों की बांट में कब से इतनी सखी हुई थी, मेरा दिल जल गया। ये सब हसद की एक शक्ल है। बास आओ, मैं जल्द ही खुद को सरजनिश किया। लेकिन मैं हसद कहाँ कर रही हूँ, ये सब तो मुझे खुद महसूस होता है। सुबह से शाम तक उन सब की खिदमत करती हूँ, फिर भी कभी इतनी तारीफ मेरी तो नहीं हुई इस घर में जितनी हनी की चंद माह में ही होने लगी है। कोई बात नहीं है, ऐसा देवरानी जिठानी के रिश्ते में चलता है, मुकाबले की फिजा आप ही आप बनने लगती है। खुद को उस मुकाबले से आज़ाद कर लो, बहुत लंबा सफर है, अभी से ऐसे जंजालों में पड़ जाओगी तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। क्योंकि रहना भी साथ है तो क्यों ना दिल बड़ा करके रहा जाए, इन छोटी छोटी बातों को दरगुजर किया जाए। क्या हुआ जो हानि की तारीफ होती है, बुराई तो वो तुम्हारी भी नहीं करे नुदरत बीबी। मैंने खुद को दलीलों से कायल करने की कोशिश की, और मेरा दिल कोई ऐसा सरकश भी नहीं था कि कहे में ना आता। इसलिए तो मैं उसको अजीज रखती थी कि ये मेरे कहे में रहता था, और अब भी किसी बेहद शरीफ बच्चे की तरह मेरे समझाने पर उसने सर झुका दिया, और मैं सब कुछ भूल भाल कर उन छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करने लगी। और मैंने गौर किया कि अब मैं इतनी परेशान न थी जितनी चंद रोज पहले तक रहने लगी थी। नुदरत बेटे, थोड़ा टाइम नौमी को भी दिया करो, देखो तो कुछ कमजोर नहीं होता जा रहा। बाबा जान उस रोज नौमी को बाहर से घुमाकर घर वापसी पर मुझसे बोले। खाता पीता भी तो कुछ नहीं है, और ना इस निकम्मी नुदरत को तौफीक होती है, कुछ अलग से बनाकर खिला दिया करे उसको। बरामदे में बैठी अम्मी जी मुझसे पहले ही बोल पड़ी। अब ऐसे भी ना कहो, बहुत अच्छी बहू है मेरी। बाबा जान मुस्कुरा कर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ के, कभी चिप्स बना दिया करो, या फिर कस्टर्ड वगैरह बनाकर दे दिया करो, या फिर जो वो शौक से खाता है। अम्मी जी नौमी को गोद में लेकर बालों में उंगलियां फेरने लगी। उनसे तो अपना हुलिया दुरुस्त नहीं हो पाता, ये क्या करेंगी नौमी के लिए? उस्मान अखबार से सर उठाकर बोले, लहजा बेहद तंजिया था, लेकिन मुझे उनका ये बोलना बहुत अजीब और बुरा सा लगा। उन्होंने तो ये जुमला अदा करके अखबार में दोबारा सर दे लिया था, लेकिन मेरा दिमाग पूरा दिन खराब रहा। यानी हद होगी, क्या हो गया मेरे हुलिया को? और फिर इतना घर का काम करने के बाद भी उनको मैं कुछ करती दिखाई नहीं देती। मेरा दिमाग फिर से खराब होना शुरू हो गया। उसी दौरान हनी किचन में आई, फ्रिज खोलकर पानी पिया और वापस मुड़ गई, और फिर जाते जाते दरवाजे पर रुक कर पूछने लगी, क्या पका है बच्चों आज? जहर। दिल तो चाहा यही करारा सा जवाब दूं, क्योंकि रोजाना वो ऐसे ही दरवाजे पर रुक कर पूछती थी, लेकिन क्या करती इस मुरब्बत का, बस ऐसा जुबान को ताला लग जाता कि कभी भी मर्जी का जवाब किसी को न दे पाती। पालक गोश्त बना है, साथ में मूंग की दाल। जी कड़ा करके मुस्कुराना भी पड़ा साथ। ओह वंडरफुल, पालक गोश्त मेरा फेवरेट है। वो झूमती हुई किचन से बाहर निकल गई। तुम्हारा क्या फेवरेट नहीं है? मैं उसके इस अंदाज पर और भी भुना गई। लाइट और डार्क ब्राउन शेड की रेडीमेड सूट और हमरंग ज्वेलरी, नफासत से किए गए मेकअप के साथ वो घर में थी, बल्कि वो रोजाना इसी तरह बनी सबरी रहती, चाहे घर में रहे या कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो उसका। सच ही कह रहे थे उस्मान, वाकई मेरा हुलिया जैसे किसी मलंगनी की तरह हो रहा है। कल फर्श धोते हुए शलवार पांचों तक से गीली हो गई थी। गीले कपड़ों से मुझे वहशत होती थी, ऊपर से खाना बनाने की भी जल्दी थी, इसलिए कमीज वही रहने दी और शलवार तब्दील करके किचन में भागी चली आई। और फिर कल से उसी हुलिया में फिर रही थी, रेड और व्हाइट प्रिंट कमीज और साथ में पर्पल प्लेन शलवार में। इस वक्त मैं किसी फकीरनी से कम न लग रही थी। और फिर ऐसा दिमाग घुमा
कि दोनों चूल्हे बंद करके सीधी वॉशरूम में घुस गई, नहाकर अपना अच्छा सा सूट निकाला और फिर पहन भी लिया। हालांकि वो नया सूट था और अभी एक दो बार ही बाहर पहन कर गई थी। आम हालात में कम से कम साल 6 माह नए कपड़े में सिर्फ बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किया करती, बाद में घर में आम पहनना शुरू करती। कपड़े क्या नहीं पहने, मेकअप करने को भी दिल चाह गया, लेकिन मेकअप क्या करूं? आंखों का मेकअप घर में करना बिल्कुल फजूल है, बल्कि अजीब। हाँ, ये लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्या कहेंगे सब, अजीब सा लगेगा ना? मैंने खुद से बारहा पूछा। अरे बाबा, दिल चाह रहे तो लगा लो। अंदर की नुदरत मेरे फैसला न करने से सख्त बेजार लग रही थी। इतनी सी बात को मसला मत बना लिया करो। और फिर मैंने गुलाबी सूट के साथ गुलाबी लिपस्टिक लगाई। देखा कैसी अच्छी लग रही हूँ। हाँ हाँ, अपना खुलिया खराब करके रख दिया था, इसलिए तो उस्मान भी उखड़े उखड़े रहते हैं मुझसे। असल में उनको बनी सवरी हनी जो नजर आती है, मैंने खुद को शाबाशी दी इतने बड़े कारनामे पर। लेकिन ये क्या, फिर से दिमाग ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। खाने की मेज पर बाबा जान, अम्मी जी और बाकी सब भी होंगे। क्या सोचेंगे इसका दिमाग खराब हो गया, क्यों बिला वजह बंद समझ कर बैठी है घर में। और फिर मैंने टिश्यू पेपर लेकर वो लिपस्टिक साफ कर डाली। लानत है तुम पर नुदरत, जलती रहती हो उस हनी को देख देख कर। मैं जलती नहीं हूँ, मैंने खुद को हमेशा की तरह डांटा। अच्छा चलो, जलती नहीं हो, तुम्हारा अपना मामला है, इस एहसास को जो भी नाम दो, लेकिन देखो बीबी, आखिर वो भी तो बनती संवरती है। इसको तो घर में कोई रोकता टोकता नहीं, तो तुम्हें क्यों टोकेंगे? नहीं, ये बहुत तेज रंग था, मैं ऐसा करती हूँ, हल्की ब्राउन लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ये ज्यादा नजर नहीं आएगी। मैं उस लड़ाई में काफी वक्त जाया कर चुकी थी, और फिर खुद को कोसते जब मैं किचन में दोबारा दाखिल हुई, तो मुंह दोबारा धोकर तौलिए से पहुंच कर आई थी कि कहीं इस मेकअप कोई निशान न चेहरे पर रह जाए जो मैंने कुछ देर कबल किया था। आहा, लगता है भाभी का कहीं जाने का प्रोग्राम है। जिशान ने सबसे पहले लब कुशाई की, मुझे साफ और नए कपड़ों में देखकर। ये कैसे अंदाजा लगाया तुमने? सालन का डोंगा टेबल पर रखते हुए मैं उसकी तरफ देखने लगी। भाई, आज तुमने कपड़े जो साफ सुथरे पहन लिए। उस्मान ने पता नहीं तंजिया कहा था या फिर मुझे ऐसा लगा। शाबाश है, महज नए कपड़ों को जताया जा रहा है। अगर मेकअप कर लेती तो क्या फरमाते जनाब? मैं अंदर ही अंदर फिर से जलने लगी। अरे बच्चों, इतने खूबसूरत कपड़े का सत्यानाश करा लिया, आपने किसी ढंग के दर्जे से सिलवा लिया होता। हनी ने आते ही किसी माहिर ड्रेस डिजाइनर की तरह नृत्य निकालने शुरू कर दिया। भाई, ये अपनी दर्जी भी खुद ही है। उस्मान का अंदाज फिर जला कटा था। ये इनको क्या होता जा रहा है? मैं हनी को छोड़कर उस्मान को देखने लगी। अगले चंद रोज कदरे खामोशी रही घर में। हनी और रिजवान हनी की बड़ी बहन के यहाँ अब्दाबाद गए हुए थे। कितना सन्नाटा सा महसूस होता है घर में, एक दो अफराद के जाने से। हालांकि हम सब मौजूद हैं घर में। मोमना कॉलेज से लौटी तो सबको बरामदे में बैठे देखकर बोली, हाँ, बेशक ये सच है बेटी। हर फर्द का अपना मुकाम होता है, अपनी जगह होती है घर में, और फिर वो नजर नजर ना आए तो कमी तो महसूस होती है ना। बाबा जान बोले। शुक्र था कि उस्मान अभी ऑफिस से ना लौटे थे, वरना वो कुछ जले कटे का इजाफा करके हनी की अहमियत और भी बढ़ा देते, और मुझे बेतरह महसूस होने लगता कि हनी की कमी जितनी ये सब महसूस कर रहे हैं, क्या मैं अगर कुछ रोज के लिए घर से जाऊं तो भी ये ऐसे ही करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि मैं हनी की तरह हर वक्त बनी सबरी खूबसूरती का मुजस्मा बनकर नहीं रहती, जिसको हर आने जाने वाला देख कर कहे, वाह, शेख साहब की बहू कितनी खूबसूरत है, जिस जगह बैठती है उस जगह को सजा देती है। या फिर मैं उसकी तरह हर तरफ कह के नहीं बखेर सकती हूँ। मेरा तो एक पाँव किचन में होता है, दूसरा छत पर। सफाई सुथराई मासी की मौजूदगी में भी मेरी तसल्ली की ना होती, तंग आकर खुद उसके साथ शुरू हो जाती। एक बेड की चादर को ही संवार संवार के इस तरह सिलवटें निकालती जैसे कोई दुल्हन सजा रही हूँ। और फिर अपनी अम्मी जी के बताए हुए खाना बनाने के तरीकों के मुताबिक एक एक खाना बनाने में जी जान से जुट जाती, चाहे प्याज और लहसुन की बदबू जिस्म का हिस्सा बन जाती। वाह अम्मा जान, आपने अच्छी कमियों वाले सारे वस्फ हम में पैदा कर दिए, और यूं सरखरू है अपनी दी हुई तरबियत से, गोया कोई किला फतह कर लिया हो। भला ये काम बावर्ची मासी या फिर दर्जी से भी करवाए जा सकते हैं, जो मैं या फिर मेरी दोनों बहनें करती हैं। बड़ी सौले आबाजी ताया के यहाँ ब्याह कर गई थी। 10 साल हो गए उनके ब्याहे हुए। वो भी सुगड़ापे की मिसाल बनने के लिए हर वक्त ससुरालियों की खुशामद में लगी रहती हैं, और कम बखत साथ में मुझे भी उसी तरह की नसीहतें करती रहती थी। दिमाग खराब करके रख दिया। मैदे के रास्ते दिल में उतरो ससुराल वालों के, अच्छे अच्छे खाने बनाओ, घर को मसले आईना बना दो। आने जाने वालों पर अच्छा असर पड़ता है कि बहू सफाई पसंद है, अच्छे अखलाक रखो, क्योंकि एक लड़की पूरे खानदान की नुमाइंदा बनकर जाती है ससुराल में। अपने अच्छे तौर तरीकों से वो अपने ससुराल जाकर साबित करती है कि वो अच्छे खानदान की है, अच्छी माँ की तरबियत याफ्ता है। वाह जी, कमाल कर दिया अम्मा जी, आपने और बाजी, तुमने भी। 6 साल हो गए खुद को रगड़ते,
ना तो वो तारीफ हुई कभी, ना इतना मुकाम मिला जितना उस हनी की बच्ची को चंद माह में ही मिल गया। अब साबित करूंगी कि अम्मा जी पर कि आप गलत थी और बाजी तुम भी। हनी के आते ही अब मैं मैके जाऊंगी रहने के लिए। मेरे माँ बाप ने कोई चूल्हे चौके से बाहर कर तो नहीं भेजा था मुझे कि मैं उनकी खिदमतों के लिए यहीं पड़ी सटी रहूं। मैंने आज दिल की सुनी ना दिमाग को कुछ कहने का मौका दिया और खुद से फैसला कर लिया कि पूरे एक हफ्ते के लिए अपनी अम्मा जी के यहाँ जाऊंगी। और फिर सिर्फ फैसले पर ही इक्तफा न किया, उसको अमली जामा भी पहनाया। हानि हफ्ते को घर वापस पहुंची। इतवार को मैंने बैग तैयार कर लिया। अरे बहू, खैरियत तो है? अम्मी जी और बाबा जान एक साथ बोले। जी वो अम्मा जी बहुत दफा कह चुकी हैं कुछ रोज के लिए आऊं। मैंने बड़ी आजिजी से सरासर झूठ बोला। क्या करती, ये कम बखत दिल बड़ा कमजोर वाकया हुआ था। खुद पर कोई भी इल्जाम लेने पर तैयार ही ना था। अच्छी बात है बेटा, जरूर जाओ। जाहिर है माँ का दिल चाहता होगा। बाबा जान जल्दी से मेरी हमनवाई में बोले। नौमी भी बड़ा खुश था कि नानी के यहाँ रहने के लिए जा रहा था। उस्मान ने ना तो अपनी खुशी का इजहार किया था और ना उदासी का। जब मैंने रात उन्हें अपना प्रोग्राम बताया, यानी उनके नज़दीक मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी यकसां थी। अम्मा जी बेहद खुश थी हमारे आने से, लेकिन साथ ही उलझ से भी गई जब हमारा लंबा प्रोग्राम देखा। अरे अम्मा जी, बिल्कुल खैरियत से आई हूँ। दिल चाहा कुछ रोज आपके पास रहूं। कल को नौमी को स्कूल जाना शुरू कर देगा तो इस तरह आकर रहना मुश्किल होगा, इसलिए सोचा कुछ दिन रह रहा हूँ। अम्मा जी की तसल्ली होगी। और अब हर्ष भी नहीं, दूसरी बहू भी आ चुकी है घर में, तो तुम्हारी सास पर बोझ नहीं पड़ेगा काम का। अब्बा जी भी बोले। सोफिया मेरी छोटी बहन मेरे और नौमी के आगे पीछे जा रही थी, किसी काम को हाथ न लगाने देती। और अनीस का भी खुशी से अजीब हाल था कि हम लोग रहने के लिए आए हैं, और मुझे अपना आप इतना अहम और मोतबर सा लगने लगता कि कोई तो है जिसे मेरी परवाह है, हाँ वो मेरी बहन हो, मेरी अम्मी या मेरे अब्बा जी या मेरा भाई। इंसान में कनात क्यों नहीं है? इतने सारे चाहने वालों की मौजूदगी में भी वो हर वक्त गिला ही किए जाता है। फलां उससे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करता, इतनी अहमियत क्यों नहीं देता? एक जरा सी कमी से हम कितना वावेला करते हैं। कुछ मुयस्सर है उस पर शुक्र क्यों नहीं करते, कनात क्यों नहीं है? मैं अजीब ही सोचों में गिर गई यहाँ आकर भी। खैरियत तो है, चुप चुप से क्यों हो? बाजी जो मेरे आने का सुनकर चली आई थी बोली। जी बिल्कुल खैरियत है। मैं बेज़ाहिर मुस्कुराई, लेकिन अंदाज शायद जला कटा था। अच्छा, लेकिन लग नहीं रहा। वो मेरे करीब बैठ गई। फिर चंद एक इधर उधर की बातों के बाद मैं असल मकसद की तरफ आ गई। बाजी काफी देर तक बड़ी खामोशी से मेरी सारी बातें सुनती रही, फिर एकदम से ही शुरू हो गई। देखो नुदरत, ये बातें अम्मी जी के सामने मत करना। मैं इसलिए नहीं कह रही कि उनका दिल दुखेगा, बल्कि इसलिए कि उन्हें अफसोस होगा। उनकी वो सारी मेहनत अकारत गई जो उन्होंने तुम्हारी तरबियत पर की थी। मैं जो किसी और ही किस्म की हमदर्दी की तवक्का कर रही थी, बाजी के मुंह से इस किस्म का जुमला सुनकर होंकों की तरह उनकी तरफ देखने लगी। जब हमारे घर में कोई नया बंदा आएगा तो क्या हम उसे अहमियत ना देंगे? और फिर हनी दुल्हन बनकर उस घर में आई है तो क्या उसके चाव चौंचले ना होंगे? अब कल को जिशान की बीवी आएगी, तुम वो भी महसूस करोगी कि घर वाले उसे क्यों पूछते बुलाते हैं। लेकिन बाजी, मैं महज पूछने बुलाने की बात नहीं कर रही हूँ, उस अहमियत की कर रही हूँ जो घर में उसे दी जा रही है। मैंने दरमियान से बाजी को टोका। देखो, अहमियत और मुकाम का अंदाजा दोनों में नहीं लगाया जा सकता। मकाम बनाने के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है, और बगैर कोशिश, कुर्बानी या मेहनत के जो मकाम मिलता है वो देर पा नहीं होता। और देखो, ये मुकाबला करना सख्त बुरी आदत है। इस तरह पूरे घर की फिजा मुतासिर होती है। खराब रवैया पूरे माहौल को खराब करता है, और बुरा माहौल इंसान को सेहतमंद नहीं रहने देता। जिस्मानी ना सही दिमागी बीमार बना देते हैं। और तुम सिर्फ एक बहू या बीवी ही नहीं, एक माँ भी हो। जब तक खुद सेहतमंद जिस्म और दिमाग की मालिक नहीं होगी, कैसे सेहतमंद माहौल दे सकोगी अपने बच्चे को? बाजी, ये सब किताबी बातें हैं, कुछ नहीं रखा इनमें। मैं बाजी की लंबी तकरीर से बेजार होने लगी। वाकई किताबी बातें हैं, लेकिन लिखने वाला उन सब तजुर्बात से गुजर कर लिखता है। और फिर कितनी अजीब बात है, तुम्हारे और हनी के मुकाबले में हनी तुमसे जीत गई है। बाजी ने अब की तंजीह अंदाज अख्तियार किया। वो कैसे? मैं कतरे गुस्से से बोली। देखो ना, वो तुमसे अच्छी है, आला शख्सियत की मालिक है, तभी तो तुम उसको कामयाब और खुद को नाकाम समझ रही हो। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो तो मैं जनरल से बात कर रही हूँ कि बगैर जान मारे भी इंसान अपना मुकाम बना सकता है। मैं बगैर शर्मिंदा हुए बोली। नहीं जान, तुम्हारा ये रवैया या सोच अच्छी नहीं। बहरहाल वक्त खुद तुम्हें बहुत कुछ पता और समझा देगा। वक्त ने ही सब कुछ सिखाया है बाजी, जवाबन में सर हिलाकर बोली। खूबसूरत चीज से खूबसूरत नज़ारा कुछ देर के लिए मबहूत तो कर देता है, लेकिन ये खूबसूरती कुछ देर को ही भली लगती है, जल्द ही जी उचाट हो जाता है। और हाँ, तुम्हें कौन कहता है तुम बनो या सब्रो नहीं? और फिर ये कहाँ लिखा है फराइज पूरे करते वक्त अपना आप भूल जाओ? समझदारी तो ये है कि खुशदिली से अपने फराइज निभाओ, और अगर काम काज खुशी से किए जाएं
तो मिजाज खुद ही अच्छा रहने लगता है, और ऐसे में बंदे का खुद ही दिल चाहता है कि अपना भी ख्याल रखा जाए। ऐसा इसी सूरत मुमकिन है जब खिदमत एहसान समझ कर ना की जाए। मैं जानती थी बाजी को नसीहतें करने का शौक ही नहीं, जुनून है। इसीलिए मैंने बाजी की गुफ्तगू का रुख मोड़कर बच्चों की तरफ कर दिया। बाजी, आपके बच्चे बेचारे तो बोर हो जाते होंगे। सारा दिन स्कूलों में उस्तादों की तकरीरें सुने और घर में आपकी। मेरे बच्चे बहुत समझदार और ज़हीन हैं, उन्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजी ने बच्चों पर रख कर खुली खुली मुझ पर चोट की थी। मैं तिल मलाई तो बहुत, लेकिन बोली आगे से कुछ नहीं। उसी रोज उस्मान आए। खुशी की एक अजीब सी लहर मेरे अंदर दौड़ गई। यकीनन मुझे लेने आए हैं। दिल नहीं लगा होगा मेरे और नौमी के बगैर। मैं शर्माती मुस्कुराती ड्राइंग रूम में चली आई। हाँ भाई, खूब ऐश हो रहे होंगे, वो मेरे से रसाला उठाते हुए बोले। जी बहुत। मैं कदरे जल्द से गई कि बजाय मेरी तरफ देखने के रसाले की बरकरदानी करने लगे। नौमी कहाँ है? शुक्र है ख्याल तो आया। रसाले से सर उठाकर उन्होंने पूछा तो मैंने सोचा वो खाला के साथ खेल रहा है। ऊपर बुलाती हूँ। फिर वो जितनी देर रहे अम्मा जी अप्पा जी या फिर नौमी के साथ लगी रहे, एक बार भी वापस चलने को न कहा, बल्कि मैं खुद ही ढीठ बनकर बोली, हफ्ते को आ जाऊंगी। नहीं, बेशक जितने दिन मर्जी रहो, घर तो जल ही रहा है। वो लापरवाही से यूं बोले जैसे मेरा वजूद किसी अहमियत का हामिल नहीं है, और अगर है तो महज घर जलाने के लिए। और फिर मैंने बाजी से जी भर कर बहस की। 2-4 रोज के लिए हनी क्या गई। सब घर वाले कैसे बोले, कितनी कमी महसूस हो रही थी, और मुझे कहते हैं जितने दिन मर्जी रहो। तुम्हारा रवैया किसी 16-17 साल लड़की का है। अब तुम मैच्योर बनो, हर वक्त छोटी छोटी बातों को नोट मत किया करो। उस्मान ने मेरी तरफ देखा, क्यों, ये क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं बोला। बाजी ने बुरी तरह मुझे झाट पिला दी। अगले रोज बाबा जान, मेरे ससुर की आमद हुई तो मुझे कुछ तसल्ली हुई। वो नौमी के लिए ढेर सारा फ्रूट बिस्किट और दूसरी चीजें लाए थे। बेटा अब आ जाओ, घर में रौनक नहीं लग रही तुम दोनों के बगैर। बाबा जान ने ये जुमला कहकर मेरा दिल खुश कर दिया, और मैं बगैर अगले किसी जुमले का इंतजार किए अंदर चल दी सामान बांधने। और फिर बाकी दोपहर की चाय पीकर अम्मा और अब्बा जी की दुआओं के साथ मैं घर चली आई। घर पहुंचने पर सभी खुशदिली से मिले। मैंने भी सारा गुबार साफ कर लिया था। पहले ही रही सही कसर बाजी की तकरीरों ने पूरी कर दी थी। और फिर मैं अम्मा जी, मोमना और फिर हनी के यूं गले लग लग कर मिली कि बरसों बाद कोई वतन वापसी पर भी ना मिलता होगा। बड़े दिल लगा दिए भाभी। जीशान मुस्कुराते हुए सर आगे करके बोला, तो मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ रख दिया। मैं भी वाकई पागल हूँ, जज्बों के इजहार को जरूरी समझने लगी, और वो भी लफ्जों के जरिए। और जब जज्बा बगैर लफ्जों के जाहिर होता है तो उसका एहसास ही निराला होता है। मैं सरशार से कमरे में चली आई। लगता है यहाँ सफाई नहीं करवाई अम्मी जी, और हनी ने सोचा होगा मैं घर में नहीं हूँ तो माँ से खामहा इधर उधर हाथ ना मार जाए। मैं बैग रख कर सोचने लगी। नौमी भाई चाचू और पप्पो के साथ खेलने लगा। शुक्र है बज्जो आप वापिस आ गई। मैं तो इससे एक हफ्ते में ही पागल हो गई हूँ। हनी मेरे पीछे कमरे में चली आई। वो क्यों भाई? मैं मुस्कुरा दी। ये किचन नहीं संभाला जाता मुझसे। वो दोनों पाँव बेड पर रख कर बैठ गई, और घर भी। लेकिन अब तो संभालना पड़ेगा, रिजवान ने कहा। लेकिन अब तो बच्चों आ चुकी हैं। वो रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, लेकिन हमने सारी जिंदगी बच्चों के साथ ही तो नहीं रहना। हो सकता है चंद माह में कंपनी की तरफ से मुझे किसी दूसरे शहर भेज दिया जाए, तो वहां तो बच्चों नहीं होंगी। रिजवान बोला, जब तक इकट्ठे हैं फार्म इसको मसला ना बनाए। वो इतरा कर बोली, कोई मसला नहीं बनाया। बहरहाल ये बात अब तय समझो। भाभी कोई नौकरानी नहीं है, 5 माह बहुत होते हैं दुल्हन की चाव चोंचने के लिए। अब घरदारी भी जरूरी है। अम्मी और बाबा जान का भी यही फैसला है। एक हफ्ता लगातार भाभी किचन संभाला करेंगी और तुम बाकी काम, और अगले हफ्ते ये ड्यूटी बदल कर किचन और तुम्हारी जिम्मेदारी और बाकी ऊपर के काम भाभी कर लिया करेंगी। आखिर दोनों बहुएं हो इस घर की। आज इस तमाम अरसे में मैं पहली बार इरफान को इतना संजीदा देख रही थी। हनी की सारी बशाशत इन चंद जुमलों में ही रफू चक्कर होगी। उस वक्त ना कोई अदा काम कर रही थी, ना कोई खूबसूरत थी। रिजवान ने जो कहना था कहकर चला गया। भाभी, काश आप भी एंजॉय कर सकते। क्या क्या निराली डिशेस बनाकर हमें हनी भाभी ने खिलाई आपकी गैर मौजूदगी में। अगले रोज ईशान ने खाने की मेज पर इंकशाफ किया। अच्छा, मैं भी यकीनी किसी कैफियत में हनी को देखने लगी। मैं भी कितनी पागल हूँ, अपने आप से अंदाजा लगा बैठी कि हनी को खाना पकाना नहीं आता। मलीदा कीमे का हलवा, कद्दू की खीर, सूजी बिरयानी, चिकन का मलीदा, और पता नहीं किस किस नए सब्जी और डिश का इजाफा हुआ हमारे दस्तरखान पर इस एक हफ्ते में। हम सब घर वाले तो रोजाना शर्त लगाकर पता लगाते रहे कि ये हमारे सामने पड़ी हुई सब्जी करेले गोश्त है या काली तोरी। जिशान का हंसी के मारे बुरा हाल था। बका नहीं, सीख लेगी। अम्मी जान ने जिशान का घुरा। सच्ची बात है, हमारी मम्मी ने हमें कभी ये काम करने ही नहीं दिए थे। हनी बगैर शर्मिंदा हुए इतरा कर बोली, लेकिन यहाँ तो करने पड़ेंगे क्योंकि घर और होटल में यही फर्क होता है। रिजवान कदरे उखड़े हुए लहजे में बोला। हनी के खूबसूरत चेहरे पर नागवारी का तासुर उभरा। और फिर वाकई रिजवान ने सख्ती से नोटिस लिया कि हनी घरदारी सीखे, और उस घरदारी के चक्कर ने हनी को बौखला कर रख दिया। अब भला खूबसूरत लिबास और ज्वेलरी पहनकर फुल मेकअप में
बस सफाई कराती कि अच्छी लगती, या फिर ऊंची हील पहनकर मासी के साथ फर्श धुलवाती तो वो बिल्कुल ही अच्छी ना लगती। ये हफ्ता तो उसने बेजारी से ही सही जैसे तैसे गुजार लिया। जैसे ही अगला हफ्ता शुरू हुआ और प्रोग्राम के मुताबिक किचन उसके जिम्मा आया, तो पहले रोज ही हनी के सर में दर्द शुरू हो गया। हनी सारा दिन उसने कमरे में गुजार दिया। आज तो मेकअप का भी होश ना था उसको। तुम लेटी रहो, मैं खुद खाना बना लूंगी। मैं उसे तसल्ली देकर किचन में चली आई, लेकिन ये क्या, अगले रोज वो सुबह ही तैयार होकर बैठ गई। रिजवान के ऑफिस जाते ही, कहीं जा रही हो? मैं उसे तैयार बरामदे में चक्कर लगाते देख कर बोली, हाँ बज्जो, वो मम्मी का फोन आया था, उन्होंने बुलवाया और गाड़ी भी भेज दी है, आने वाली है। अल्फाज उसके लहजे का साथ न दे रहे थे और अगला पूरा हफ्ता उसने अपनी मम्मी की बात सुनने में लगा दिया। इशारों कनाइयों से जिशान, मोमना, बाबा जान और अम्मी जी कुछ बातें करते रहे उन दिनों। रिजवान भी महसूस कर रहा था, और जो ही हफ्ते बाद हनी घर वापस आई तो लंबी तफसील सुनानी शुरू कर दी। मम्मी के कुछ रिश्तेदार आने वाले थे, इसलिए मैं रुक गई वहां। अच्छा लगता है, वो किसी दूसरे मुल्क से पैदल आने वाले थे। रिजवान कदरे तंजिया हंसा। क्या मतलब है आपका? उसकी तेवरी पर बल पड़ गई। वैसे भी वो उन रवैयों की आदी न थी। भाई एक हफ्ता लगा उन्हें आने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसी भी कोई बात नहीं, परसों पहुंचे हैं वो लोग। वो कुर्सी पर बैठती हुई बोली, अच्छा अगर आपके सर में आज सर ना हो तो आज से किचन आप संभाल लें। रिजवान ने उसके मूड की परवाह न करते हुए बाजार खासी खुशदिली से उसे मुखातिब किया, और मैंने देखा हानि के चेहरे पर कई साए आकर गुजर गए। वो बेचारी तो पूरा हफ्ता उस किचन से छुपती माँ के घर बैठी रही। रिजवान से भी दूरी बर्दाश्त की, अपनी तरफ से वो हफ्ता निकाल कर आई थी मुसीबत का, और ये क्या, मुसीबत सामने खड़ी थी। बेसारी टपक रही थी हनी के चेहरे से, और फिर सालन तो जैसा तैसा वो तैयार कर देती, लेकिन रोटियां रोजाना बाजार से मंगवाती थी। एक दो बार तो सालन भी बाजार से मंगवाया। बनाने को साथ मैं बना देती, लेकिन रिजवान का ख्याल था इस तरह वो काम की आदी न हो सकेगी जब तक कि पूरी जिम्मेदारी उस पर न डाली जाएगी। और मैंने देखा हनी की ये काम चोरी या खाना बनाने का सलीका न होना, सफाई सुथराई की तरफ ध्यान न देना, आहिस्ता आहिस्ता गालिब आने लगा। उसके हुस्न और खूबसूरत लिबास की अब कम कम ही तारीफ होती थी, उसके कपड़ों के इंतहाब की, ज्वेलरी की और बनने संवरने की दाद कोई न देता। और फिर रही सही कसर उस रोज हनी और रिजवान के झगड़े ने पूरी कर दी। बाकी घर तो फिर भी खामोशी अख्तियार कर लेता, लेकिन रिजवान बुरा खाना बनाने पर अक्सर उसे टोक देता, और ये बात हनी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती। उसे तो आदत हो चुकी थी सराहे जाने की। ये क्या, उस पर तनकीद हो रही थी, वो भी खुले बंदों सबके सामने, बाबा जान, अम्मी जी और हम सबकी मौजूदगी में। उसी बात पर वो रिजवान से उलझ पड़ी और खासी बहस हुई दोनों के दरमियान। नतीजतन अगले रोज बैग उठाकर हनी मैके चल दी। अम्मी जी, बाबा जान और हम सब के मना करने के बावजूद। जाने दें इसे, शौक पूरा करने दें इसको। रिजवान दरवाजे में खड़ा बोला, हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी मुझे इस डब्बे में रहने का कोई शौक नहीं। वो लंबी हील से टिक टिक करती हमारे सामने घर से निकल गई। ये खूबसूरती शक्ल सूरत की हो या लिबास की, असल खूबसूरती नहीं होती। औरत की शर्म हया, सलीका, तहजीब, अदब, लिहाज असल खूबसूरती है, जो इस औरत में नापैद है। और इसको इस दुनियावी खूबसूरती से असल खूबसूरती की तरफ आने में बहुत वक्त लगेगा, ये मैंने जान लिया। रिजवान बहुत रंजीदगी से कह रहा था। आप बहुत खुशकिस्मत हैं उस्मान भाई, आपको नुदरत भाभी जैसी बीवी मिली जिसमें वो तमाम वस मौजूद हैं जो जिंदगी को कायम दायम और पुरसकून रखने के लिए जरूरी हैं। 6 साल हो गए उन्हें हमारे घर में आए हुए, आज तक बाबा जान अम्मी जी के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोली है। घर को उन्होंने मसले आईना बनाकर रखा हुआ है। हम सबको भी उन्होंने एक बहन की सी मोहब्बत दी, कभी घर में गैरियत का एहसास पैदा नहीं होने दिया। और नौमी बहुत खुशकिस्मत बच्चा है जो ऐसी माँ की गोद में परवरिश पाएगा। जहाँ आनी के घर से जाने से बदमज़गी का एहसास हुआ था, वहीं रिजवान के ये अल्फाज मुझे उड़ाकर ऊंचा, बहुत ऊंचा ले जा रहे थे। अम्मी, बाजी, आप बिल्कुल दुरुस्त कहती हैं, मैं ना समझ हूँ। बाकी ख्वाब और हकीकत के फर्क को पहचान न सकी थी ये मोहब्बत और मेहनत से बनाया गया मकाम था मेरा, जो आज सबकी नज़र में मुझे ऊंचा कर रहा था। और वो रंग और वो रंगो नूर का सैलाब आकर गुजर गया था हानि की सूरत में। बेशक हानि को वापस आना था इस घर में, और वो आज नहीं तो कल आ जाएगी, क्योंकि बाबा जान और अम्मी जी बहुत बाउसूल और मोहब्बत करने वाले बुजुर्ग हैं। रंजिशा को वो ज्यादा तूल देने के कायल नहीं है, लेकिन वक्त बता रहा था कि हानि को भी मेरे वाले रास्तों पर चलकर ये मुकाम बनाना होगा, क्योंकि मोहब्बत, कुर्बानी, अपनायत के बगैर घर नहीं बना करते, दुकानें सजा करती हैं। और मुझे भी तो इस सफर को ज्यादा कामयाब करना था, और मामूली और छोटी छोटी गलत फहमियों से दिल को पाक करके। और ऐसा करने में एक अजीब सा सुकून है, सरशारी है, अगर महसूस की जाए तो।